Assalamu alaikum warahmatullah. Today in this lecture we'll cover the method of undetermined coefficient. This method basically is designed to evaluate the particular integral of the higher order differential equation. Um let's suppose there is some differential equation that is represented as f of d, that is applying on y, equal to some function f of x. Now, this differential equation has two types of solutions. You know that this differential equation has yc as complementary function and yp as particular integral. Now, remember that the yc is basically a solution of differential equation, or you can say in homogeneous form, different homogeneous differential equation or homogeneous form of differential equation. हम नॉर्मली क्या करते थे कि फॉर इवेल्युएटिंग वाई सी वी जस्ट टेक एफ ऑफ डी is equals to 0. F of d is basically just like, for example, if I am saying that d square plus 2d plus 3 times y equals to exponent of x. Now this is basically f of d. This is whole of f of d, function of d. For evaluating by c, we take this f of d equal to 0, or we can say we are making a solution of this differential equation in a homogeneous form. Now, working for the yp is basically as yp equals to 1 divided by f of d of this function f of x. Now remember that कि हमने ये कहा कि मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट वो yp के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इस yp और yc के दरमियान एक थोड़ा सा जो कनेक्शन हुआ करता है अजम्पशंस का, वो हम ज़रा समझेंगे. देखें, लेट्स सपोज on your right hand side if you have a function like this is in this equation we have function exponent. Right now if I say on your right hand side if you have a function as constant 1 or any constant, so we can assume yp as this is only equals to a. Okay, this is our assumption. These assumption will be used later in the solution when we are solving the differential equation by a method of undetermined coefficient. Let's suppose if you have another function as 5x plus 3, or any of the linear function, we can say a linear equation of line that is representing a linear function. So we can take yp as ax plus b. This will be our supposition for yp. Now let's suppose if you have some quadratic function on the right hand side, let's suppose 3x square plus 2x minus 3. So we can suppose yp as ax square plus bx plus c and so on. Remember that कि यहाँ पे अब हम चलते चले आएंगे, अगर क्यूबिक फंक्शन होगा तो ax क्यूब प्लस bx प्लस c एंड सो ऑन. इस तरीके से हम जो है वो सपोज करेंगे. Let's suppose if you have sine ax or cos ax. For both of these functions, like if I say sine 3x or if I say cos 3x, either this or this, for any of these functions, we have to suppose yp as a cos ax in general plus b sine ax. Okay. For this one, we have to suppose a cos 3x plus b sin 3x. Remember that as I say कि अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शन होगा तो भी हम यही सपोज करेंगे. Let's suppose for example you have just cos 5x. Now for this 5x you have to suppose yp as a cos 5x plus b sin 5x
as your assumption of the yp. ठीक है, method of undetermined coefficient में the main point is you have to assume yp before solving it. ठीक है ना, हम इसमें क्या करते थे इन ट्रेडिशनल और ट्रिवियल मेथड, हम क्या करते थे कि वट एवर द फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर होता तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिस्पेक्ट से सॉल्व करते थे. दैट मीन्स वी जस्ट हैव टू substitute d by exponent of a if denominator is not equal to 0, and if denominator equal to 0 we will apply the shift theorem. Similarly, for the trigonometric function you have to replace d square by minus times coefficient of angle square if denominator is not equal to 0, and if the denominator is equal to 0 we use two direct formula that was discussed in the previous lectures. Similarly, if you have a function as an algebraic form, so you have to use the binomial expansion for the solution of the yp. These are the trivial solution of the traditional method to evaluate yp. But right now we are assuming uh, yp by ourselves, for a function, for a linear function we can assume yp as ax plus b, and for any quadratic function we can assume ax square plus bx plus c, and for any of the trigonometric function we can assume yp as a cos 5x plus b sin 5x, or in general a cos ax plus b sin ax. So similarly, for some other cases, let's suppose where that if we have function as exponent of 5x, let's suppose, so you can assume yp as a exponent of 5x. okay? Remember that इसके अंदर मैं फिलहाल आपको जनरल अजम्पशंस बता रहा हूँ कि हमारी जनरल अजम्पशंस ये होंगी, लेकिन इस मेथड के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इस मेथड को कम्प्लीटली समझ चुके होंगे. लेट्स सपोज इफ यू हैव a multiple form, let's suppose 9x plus 7 a linear into exponential. ना देखें, ये था असल प्रॉब्लम जो हमने लास्ट केसेस के अंदर डिस्कस किया था कि अगर मल्टीपल वाले केसेस आ जाएं तो मल्टीपल वाले केसेस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, थोड़ा सा जो वाईपी का सॉल्यूशन था वो लेंदी हो रहा था. दैट्स व्हाई वी बेसिकली इंट्रोड्यूसेस दिस मेथड ऑफ डिटरमाइन कोएफिशिएंट सो दैट वी कैन कंसीडर वाईपी directly as by the method of superposition. We can say the linear function, this one is a linear function, so we can assume it as ax plus b into a product of the exponential function, that is exponent of 2x. तो यानी हमारे पास जो कुछ भी होगा हम उसी के रिस्पेक्ट से वर्किंग करेंगे. लेट्स सपोज अगर यहाँ 9x प्लस 7 की जगह अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक होता है, लेट्स सपोज 3x स्क्वायर plus 5x plus 8 into exponent of 7x, let's suppose. So yp will be 3x square plus 5x plus 8 into exponent of 7x. ठीक है, तो ये कुछ आपके पास है. लेट्स सपोज अगर यही चीज आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट के बजाय, अच्छा सॉरी ये yp के अंदर 3x स्क्वायर नहीं, यहाँ तो जनरल सपोजिशन होगी ना हमारी, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें प्लीज़. यहाँ जो जनरल सपोजिशन होगी वो हमारी क्या होगी कि हम जो है वो यहाँ ले रहे होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी for the quadratic function, and exponent of 7x x remain same. Similarly, remember that sometimes we have a function like x square into exponent of 3x, let's suppose. ठीक है, so yp will be ax square, क्योंकि ये भी quadratic है पूरा, ये चीज समझने की है कि क्योंकि x square is basically quadratic function, so ax square plus bx plus c would be considered whole, as in whole or in general a quadratic function into exponent of 3x will remain same. Now let's suppose if you have exponent with trigonometric identity, let's suppose exponent of 2x into cos 7x. ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम क्या करेंगे कि देखें एक्सपोनेंट वाले केस के लिए हमने कहा हुआ है आपको कि
आप सपोज करेंगे यानी वाई पी इन जनरल होना चाहिए कुछ इस तरह, एक्सपोनेंट ऑफ 2x, ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। और प्रोडक्ट के अंदर यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ यहाँ C1 है, ठीक, C1 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 2x, ये आपने एक्सपोनेंट के लिए सपोज कर लिया। और कॉस 7x के लिए आप सपोज करेंगे, लेट सपोज a cos 7x प्लस b साइन 7x। कॉस और साइन के लिए हमने कहा था ना कि हम दोनों चीजें सपोज करते हैं। तो यहाँ C1 इंटू ए मल्टीप्लाई होगा, C1 इंटू बी भी मल्टीप्लाई होगा, तो यू कैन डायरेक्टली स्टेट इट एज, यानी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब C1 इंटू ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाहिर है अब ये भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही आएगा, इसे आप अल्फा कह दें या कुछ और कह लें। यानी यहाँ चाहूँ तो मैं अगर ए नॉट और बी नॉट अगर कह रहा हूँ तो यहाँ सिंपल जो है वो ए कह दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से C1 मल्टीप्लाई होगा बी नॉट से, तो इसको मैं बी कह रहा हूँ, ठीक है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा a इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 2x इंटू कॉस 7x प्लस b इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 2x इंटू साइन 7x। तो ये आपका yp, ये हमारी अजम्पशन के मुताबिक होगा। इसी तरीके से डिफरेंट yp's भी हो सकते हैं, यानी अगर आपके पास जो है वो लेट सपोज एक्सपोनेंट भी आ जाए, यानी अलजेब्राइक भी आ जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ जाए। असल केस तो ये वाला था जो डिस्कस करना था कि एक्सपोनेंट भी आ रहा हो और अलजेब्राइक भी आ रहा हो। लेट सपोज एक्स स्क्वायर हो और साइन 4x हो, और इसके साथ लेट सपोज 7 भी है, कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको याद होगा कांस्टेंट के लिए तो हम जो है वो सिर्फ a सपोज कर लेंगे। वाई पी इनिशियली अगर मैं बात करूं तो इसके लिए a सपोज किया जाएगा। एक्स स्क्वायर के लिए क्या सपोज किया जाएगा? अब a एक्स स्क्वायर से शुरू होना चाहिए, लेकिन वो हमारे पास अब आर्बिट्री कांस्टेंट a पहले यूज हो चुका है, तो अब हम यूज कर रहे हैं बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इनिशियली। और फिर साइन फोर एक्स के लिए अब a कॉस 4x यूज होना चाहिए था, लेकिन a भी यूज हो गया, b भी यूज हो चुका है, c d भी यूज हो चुका है, तो हम इसको रख रहे हैं e cos 4x प्लस f साइन 4x। अच्छा, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए a मल्टीप्लाई होगा b से, c से, d से, तो a इंटू बी, a इंटू सी, a इंटू डी, ठीक है। ये कोई और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। और फिर इसी तरीके से ये जब फर्दर मल्टीप्लाई होंगे आपके इस टर्म से, यानी कि यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है ई और एफ से, तो फिर दोबारा से ए बी इंटू ई, ये एक और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। तो इन शॉर्ट हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को थोड़ा सा कट करेंगे। डायरेक्ट जो है वो हम जो सोल्यूशन देंगे यहाँ पर वो कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ अल्फा, दिस इज वन ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलें अल्फा नहीं, अल्फा थोड़ा सा अजीब सा लगता है समझने के एतबार से, तो हम इसको कह रहे हैं लेट सपोज a1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई में, इसी के साथ जो है वो cos 4x होगा। फिर इसी तरीके से आपके पास जो है वो a2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा और साइन 4x भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी टर्म्स भी आपकी क्या बनेगी, यानी टोटल जो है वो आपकी ए बी a1 a2 a3 के साथ जो है वो आपके एक्स स्क्वायर की टर्म्स, a1 a2 के साथ जो एक्स स्क्वायर की टर्म है, b1 b2 के साथ आप जो है वो एक्स की टर्म्स आ जाएंगी और फिर कांस्टेंट आ जाएंगी। टोटल 6 टर्म्स आएंगी। आप चाहें तो इनको जो है वो फर्दर सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी इस चीज़ को आप ऐसे ही रख लें और इसको खाली मल्टीप्लाई करा दें cos 4x और इस sin 4x से, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो आपके वाईपीस ये हो सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारी अजम्पशन है, इसी के रिस्पेक्ट से जो है वो हम तमाम जो है वो काम कर रहे होंगे। इन अजम्पशंस के अंदर जो प्रॉब्लम है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है वो कोई एग्जांपल देखते हैं जो इन अजम्पशंस के ऊपर बेस करती हुई हैं, ठीक है। तो लेट सपोज हम जो है वो एक कोई एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर जो है वो हम yp को बेसिकली टारगेट करेंगे, yc को जो है वो आप इवेल्युएट जिस तरह पहले करते थे उसी तरीके से कर सकते हैं। लेट सपोज इफ यू हैव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 4 टाइम्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 2 टाइम्स ऑफ y that is equals to 2x square minus 3x plus 6।
Now you can see here this differential equation can be written as in this form: d square plus 4d minus 2 times y equals to 2x square minus 3x plus 6. As I said कि yc की वर्किंग तो इसकी सेम ही होगी. फॉर yc you will have to take d square plus 4d minus 2 equals to 0, और यहाँ से आप जो है वो रूट इवेल्युएट करेंगे. whatever the root of this equation is you can write yc. ठीक है, तो मैं आपकी बस सिर्फ और सिर्फ ये बता देता हूँ. यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं, एक रूट है -2 माइनस रूट 6, और सेकंड है आपके पास -2 प्लस रूट 6. ठीक है, तो हम जो है वो वाई सी इसका डायरेक्टली लिख सकते हैं c1 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ दिस -2 माइनस रूट 6 इंटू एक्स प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ दिस -2 प्लस रूट 6 एक्सपोनेंट के अंदर आप ये रख देंगे. ठीक है, तो वाई सी को लिखने का तरीका जो है वो हमारा ऐसे ही रहेगा. हाँ, एक लिंक है वाई सी और वाई पी का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आती है जब हमें वाई सी को देखना होता है. वाई पी को सपोज करने के लिए वाई सी को भी कुछ ना कुछ कंसिडर करना होता है. नाउ वर्किंग फॉर वाई पी के लिए देखते हैं हम. वाई पी के अंदर अगर आप देखें थोड़ा सा कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है. तो हम वाई पी को इन जनरल सपोज कर रहे हैं a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी. ठीक है, तो ये वाई पी हम सपोज कर रहे हैं पहले से. अच्छा, इसके अंदर जो मैं बात बता रहा हूँ ना कि YC और YP का लिंक हमें एक देखना है, वो ये देखना होगा कि कोई भी टर्म जो YP की आप सपोज कर रहे हैं वो YC के अंदर पहले से एग्जिस्ट ना करती हो. तो आप देख सकते हैं कि इनमें YP और YC के दरमियान बहुत फर्क है. ये जो है वो एक्सपोनेंशियल टर्म है, पहली टर्म भी एक्सपोनेंशियल है, दूसरी टर्म भी एक्सपोनेंशियल है. ये जो है वो पूरी पूरी क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है. तो यहाँ पर कोई टर्म जो है वो YP और YC की एग्जिस्ट नहीं करती. नाउ जैसे कि मैंने कहा कि ये YP एक सॉल्यूशन पहले से है, ये हमने अज्यूम कर लिया. जब हमने अज्यूम कर लिया तो आप देखें इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो इस तरह भी लिख सकता हूँ, y डबल डैश प्लस 4y डैश माइनस 2y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6. दैट मीन्स कि ये सॉल्यूशन है YP का. दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन. इसको हम नाम भी देते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नाम दिया करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कहते हैं. जब ये सॉल्यूशन है तो दैट मीन्स कि ये सॉल्यूशन लाजमी जो है वो आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करेगा. तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिखें, यानी वाई पी डबल डैश प्लस 4yp डैश माइनस 2yp that is equals to 2x square minus 3x plus 6. तो जाहिर सी बात है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा. नाउ रिक्वायरमेंट यहाँ क्या है कि yp तो आपके पास है, yp डैश हमें यहाँ पे रखना है और yp डबल डैश यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें यहाँ रखना होगा. तो ये कहीं हम जो है वो रफ में वैल्यूएट कर लेते हैं. लेट सपोज अगर yp आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो yp डैश आपके पास हो जाएगा 2 इंटू ए एक्स प्लस बी. सिमिलरली yp डबल डैश आपके पास हो जाएगा 2 इंटू ए. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस 4 टाइम्स yp डैश जो है आपका हो जाएगा 2a इंटू एक्स प्लस बी माइनस 2 टाइम्स yp आपके पास हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी that is equals to 2x square minus 3x plus 6. Now अब हमें जो है वो ये जो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट थे या जो हमारे सपोज्ड कोफिशिएंट्स थे, यानी a भी था, एक हमारा कोफिशिएंट b भी था और एक c भी था, ये हमें जो है वो इवेल्युएट करने. a b c की अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो ठीक है, हम जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को yp आराम से वो लिख सकते हैं. अच्छा, अब जो है वो हम क्या करेंगे, इसमें जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराएंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से. जो भी इक्वेशंस बनेंगी हम उसे सॉल्व कर लेंगे. तो आप देखें कि यहाँ पूरी इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का एक ही कोफिशिएंट है, यानी कोफिशिएंट वाइज अगर हम इसको सेपरेट करें तो -2a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर.
इसके अलावा एक्स स्क्वायर कहीं नहीं। जबकि एक्स के कोफिशिएंट अगर आप देखें तो पहला कोफिशिएंट वो ये यहाँ पर है 8a, दूसरा कोफिशिएंट जो -2 जब मल्टीप्लाई होगा आपका इस b से तो यहाँ होगा -2b, तो ये दोनों कोफिशिएंट बनेंगे x के। ठीक है, अब कांस्टेंट्स को सेपरेट करें तो कांस्टेंट्स आपके पास होंगे 2a, और इसके बाद जो है वो आपके पास दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा +4b, और तीसरा कांस्टेंट हो जाएगा -2c, दैट इज इक्वल्स टू, यानी ये इक्वल हो जाएगा -2x² - 3x + 6। Now you can compare the coefficient from left hand side and right hand side, so that comparing coefficients leads to the result of -2a is equals to 2, implies that a will be equal to -1। a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे इसी तरीके से आ गई। सिमिलरली अगर हम बात करें आगे इसके फर्दर सॉल्यूशन की, यानी अगर हम सेकंड कोफिशिएंट को फिलहाल कंपेयर कराएं, सेकंड कोफिशिएंट आपके पास हो जाएगा 8a - 2b, that is equals to -3। now we know that the value of a is -1, -2b इक्वल्स टू -3, यानी आपके पास तीन इक्वेशन बनेंगी, इन तीनों को सब साइमल्टेनियस या तो आप सॉल्व कर लें, या जो है वो जिस तरह भी अभी a की वैल्यू आ गई है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे फर्दर सोल्यूशन कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं साथ साथ। तो ये आपके पास हो जाएगा 2b इज इक्वल्स टू -8 + 3, और you can say that b equals to this will become -5 divided by 2। ठीक है, तो -5 divided by 2 will be the value of b। आई होप कि यहाँ कोई मिस्टेक नहीं हुई। -8 + 3 2b वहाँ चला गया, ठीक है। सिमिलरली तो जो थर्ड इक्वेशन आपकी कंपेयर होगी वो जाएगा 2a + 4b - 2c is equals to 6। now you just have to substitute the value of a and value of b so that to evaluate the value of c। ठीक है, you can substitute the value of c from here, कि c की वैल्यू जो भी आपके पास आएगी वो a b और c की वैल्यू के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ जी ये a b और c की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें ए बी और सी की वैल्यूज इवेल्युएट करने के बाद आप वाई पी को जो है वो लिख सकते हैं। तो सी की वैल्यू आपके पास यहाँ आ रही है -9। ठीक है, मैं डायरेक्टली थोड़ा सा जो है वो आप लोग को यहाँ बता रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। -9 ये सी की वैल्यू आ रही है। तो c की वैल्यू इवेल्युएट करने के बाद हम जो है वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ a b और c को हमारी सपोजिशन के मुताबिक जो yp था उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी हमारी सपोजिशन के मुताबिक जो yp है वो आपके पास है ax² + bx + c। तो हम इस ax² + bx + c के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी वैल्यूज को। ठीक है, now implies that yp is equals to ax² + bx + c would become -1x² -5 divided by 2x -9। ठीक है, तो ये आपके पास a b और c की वैल्यू से yp आ गया। नाउ यू कैन राइट द जनरल सॉल्यूशन एज y = yc + yp, और आप जो है वो yc और yp को ऐड करा के आपस में वो लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन था यहाँ पर yc और yp का। एक और कोई एग्जांपल देखते हैं, जिस एग्जांपल के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ रही हो या कोई और सी वर्किंग जो है वो रिक्वायर्ड हो, तो उस वर्किंग को देखते हुए हम जो है वो सोल्यूशन करेंगे। लेट सपोज कि हमारे पास जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन, या चलें एग्जांपल से देखते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं कि आपके पास है y" minus y' plus y is equals to 2 cos 3x। ठीक है, ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल है।
तो अब देखें इसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन वही चीज़ के वाई सी आप इवेल्युएट करेंगे और वाई पी वो भी इवेल्युएट करेंगे। तो वाई सी की वर्किंग आप थोड़ा सा खुद से देख लें, मैं वाई पी की वर्किंग जो है वो जस्ट सजेशंस बता रहा हूँ इसमें कि क्या होंगी, कि फॉर वाई सी जो है वो आप खुद से कर लेंगे। और फॉर वाई पी के लिए हमें क्या अज्यूम करना होगा कि लेट वाई पी विल बी इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए हम क्या कर रहे थे, आप सपोज कर लेंगे a इंटू कॉस 3x प्लस b इंटू साइन 3x। मे बी आपके जहन में आए कि 2 तो जो है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो हमें इसके मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ कांस्टेंट देना चाहिए। लेकिन आप खुद सोचें कि लेट सपोज अगर मैं उस रिस्पेक्ट से भी करता सपोजिशन कि कांस्टेंट की वजह से k रख दिया, फिलहाल मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इनके cos 3x के साथ मैंने कुछ और रख लिया, लेट सपोज a1 cos 3x और प्लस a2 साइन 3x ये रख लिया। तो देखें k मल्टीप्लाई होगा a1 से, तो जाहिर है दो आर्बिट्री कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट बनेगा। तो इसीलिए yp की जो मेरी सजेशन है वो यहाँ पर ये है कि आप yp को a cos 3x प्लस b साइन 3x के इक्वल ही लें। अब क्या करेंगे, अब जो है वो क्योंकि इक्वेशन के अंदर हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो yp डैश रिक्वायर्ड है। आप yp डैश इवेल्युएट कर लें, yp डैश आपके पास हो जाएगा माइनस a साइन 3x प्लस b कॉस 3x। अच्छा 3 भी मल्टीप्लाई में, सॉरी 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। और वाई पी डबल डैश जब आप इवेल्युएट करेंगे नहीं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा -9a कॉस 3x -9b साइन 3x। ठीक है, तो ये आपने दोनों ये इवेल्युएट कर लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता तो हम वो भी इवेल्युएट वो उसी तरह से कर लेते। तो बहरहाल सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर इन इक्वेशन 1, लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन 1, substituting all values in equation 1, you will have -9a cos 3x -9b sin 3x as yp डबल डैश। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, हमने इस इक्वेशन को क्या बना लिया, यानी इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 1 नहीं, इसको किसी और का नाम दे दें। इक्वेशन 1 जो है वो इसको कह दिया, तो yp के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, yp डबल डैश माइनस yp डैश प्लस yp डैश, सॉरी डैश नहीं होगा यहाँ पर, yp ओनली। तो हम जो है वो लिख सकते हैं इक्वल टू 2 cos 3x, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं, और हमने सब्स्टिट्यूशन जो करी है वो इक्वेशन 2 में करी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई पी डैश आपके पास हो जाएगा -3a साइन 3x प्लस 3b cos 3x। सिमिलरली प्लस वाई पी आपके पास हो जाएगा a cos 3x प्लस b साइन 3x। राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 2 cos 3x। नाउ हमें क्या करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराना है। कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ cos और sin के कोफिशिएंट को कंपेयर करा लें यहाँ पर, तो आपके पास a और b की वैल्यूज वो डायरेक्टली आ जाएंगी। तो आप देखें यहाँ पर कि cos का पहला कोफिशिएंट है -9a, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ -9a cos 3x का कोफिशिएंट है। यहाँ पे cos का कोफिशिएंट है माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा -3b, और यहाँ आपके पास cos का कोफिशिएंट है +a। ठीक है, तो ये cos 3x का कोफिशिएंट है इन तीन टर्म्स के अंदर। इसी तरीके से जो sin 3x के कोफिशिएंट है उनको भी देख लेते हैं। sin 3x के कोफिशिएंट पहला है -9b, फिर उसके बाद है -3b, सॉरी -3a, और माइनस भी नहीं बल्कि प्लस हो जाएगा ना, ये वाले मल्टीप्लाई होगा तो साइन का +3a, और साइन का यहाँ पर हो जाएगा +b साइन 3x इक्वल टू 2 cos 3x। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि आपने जो है वो cos और
साइन के कोफिशिएंट जो भी थे उनको सेपरेट कर लिया। नो इन कॉस और साइन के कोफिशिएंट्स को ज़रा हम कंपेयर करा लें अगर राइट हैंड साइड से, तो हमारे पास जो है वो उन कंपैरिजन के बाद कंपैरिजन से फाइनल सॉल्यूशन वो आ सकता है ए और बी का खाली। जो रिक्वायर्ड है हमारे पास फिलहाल तो ए और बी का ही सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, एक जो कि अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है उन्हीं को इवैल्यूएट कर रहे हैं हम। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स हियर, coefficients from left hand side and right hand side. The coefficient on the left hand side of cos 3x is minus 8a minus 3b। ठीक है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस 9a प्लस ए माइनस 8a हो गया, माइनस 3b है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे जो cos का कोफिशिएंट है वो है 2। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड आपके पास जो है वो माइनस 9b प्लस 9 प्लस b ये हो जाएगा माइनस 8b और 3a इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे साइन का कोफिशिएंट क्या है, साइन का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0। तो यू जस्ट हैव टू सॉल्व नाउ, you just have to solve these equation, you can say this is equation alpha and this is equation beta। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज को आप फाइंड करने के लिए इसे सॉल्व करेंगे। ए और बी की वैल्यूज जब आपके पास आ जाएंगी तो उन ए और बी की वैल्यूज को आप वाई पी के इस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वाई पी आपके पास आ जाएगा। वाई सी हम पहले ही वैल्यूएट कर चुके होंगे, वाई बी आ गया तो आप जनरल सोल्यूशन वो लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल। ये मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट था। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपने टेबल याद रखा हुआ है कि राइट हैंड साइड पे जो आपका फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट से हम जो है वो वाई पी कंसिडर करेंगे तो वर्किंग जो है वो आपकी आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगी। बस मैथ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट का मतलब यही है कि आप कोफिशिएंट्स को इस तरह से कंपेयर करके इवेल्युएट कर सकते हैं। बहरहाल इस मेथड के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये कि अगर वाई सी के अंदर भी ऐसा फंक्शन मौजूद है जो कि आप वाई पी में सपोज कर रहे हैं तो फिर मेथड जो सोल्यूशन है वो आपका आ नहीं पाएगा। तो इस तरह के ग्लिच को या इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम इंशाल्लाह मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर हम ये देख रहे होंगे कि अगर इस तरह के ये जो जो प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।